Hello everyone. Once again, I welcome you all to my YouTube channel, that is Economics on the Top, and we are doing our chapter number 1 of 10th class Economics. And in last video, we have covered all the important terms of the chapter as well as first 5 question answers of this chapter. Today we will start with our next question, that is question number 6. So let us read out the question. Average income is a good criteria for measuring development. फाइन, यहाँ पर आपको एवरेज इनकम को एक अच्छे क्राइटेरिया के तौर पर बताना है. सो यू नीड टू एक्सप्लेन द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ द दिस एवरेज इनकम फॉर मेजरिंग द development of a country. Now, first of all, let us discuss what are the positive points of this average income. Average income gives an idea about the income of a person of the country. No doubt ये हमें एक average person की income का idea बताता है. Suppose if average income of the person is high of the country, then country will be considered as developed country, and if average income of the person of the country is low, then country will be considered as backward country. So हमें इससे पता चल जाएगा, एक हमें आइडिया मिल जाता है कि एवरेज इनकम कितनी है. सेकेंड, एवरेज इनकम इज़ यूज टू क्लासीफाई द कंट्रीज इनटू डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. जब हमें ये पता चल जाता है कि एवरेज इनकम कैसी है पर्सन की, तो हम किसी कंट्री को इजीली क्लासीफाई कर सकते हैं दैट वेदर द कंट्री इज डेवलप्ड, डेवलपिंग और बैकवर्ड. थर्ड, एवरेज इनकम इज यूज टू मेक इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द कंट्री. नो डाउट इट हेल्प्स इन मेकिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द कंट्री. सपोज इफ द कंट्री इज हैविंग लो पर कैपिटा इनकम, देन the government of the country can make economic policy related to how to improve educational quality of the country, how to invest in the industrial sector so that people can earn more income, how to develop infrastructure of the country. और अगर कोई country already average income उस country की high है, then it can think about other aspects of the development rather than thinking of the basic infrastructure. So it helps in making economic policy of the country. Next है आपका average income also represent the living standard of the people of the country. No doubt अगर average income जो है वो high है तो living standard भी कैसा होगा, high होगा. And if average income is low, then living standard will also be low. अगर हम USA की बात करें, वहाँ पर average income कैसा है, high है लोगों का, और accordingly living standard भी कैसा है, high है. तो these are the benefits of per capita income for measuring development of the country. Next question, differentiate between developed and underdeveloped country. बहुत ईजी है क्वेश्चन. आप सबसे पहले क्या करें, आपका जो डेवलप कंट्रीज़ हैं इनका लिविंग जो पर कैपिटा इनकम है दैट विल बी हाई, और अगर हम बैकवर्ड कंट्रीज़ की बात करें, अंडर डेवलप कंट्रीज़ की बात करें, तो यहाँ पर कैपिटा इनकम कैसा होगा, लो होगा. अब एक रिपोर्ट यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं कि अल्टीमेटली हम इसको डेवलप्ड और बैकवर्ड में कैसे कैटेगराइज करते हैं. It is based according to the World Bank report published in 2012. Developed countries having US dollar 12,295 per annum per capita income. तो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनकी जो पर कैपिटा इनकम है थी अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट दैट इज़ पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक इन 2012, जो डेवलप कंट्रीज़ की पर एवरेज इनकम थी दैट इज़ US डॉलर 12,295 एंड इट इज़ $1005 ओनली इन केस ऑफ बैकवर्ड कंट्री. अगर नेक्स्ट जो डिफ्रेंशिएशन है वो हमारा एवरेज इनकम के बेस पर ही बन सकता है. इफ़ एवरेज इनकम इज़ हाई, इट मीन्स लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री विल आल्सो बी हाई. वेरेज अगर यहाँ पर आपका बैकवर्ड कंट्रीज़ में एवरेज इनकम लो था तो लिविंग स्टैंडर्ड भी कैसा होगा, दैट विल बी आल्सो बी लो. ठीक है, एक आप बना सकते हैं दैट लिटरेसी लेवल जो डेवलप कंट्रीज़ में होता है इट इज़ वेरी हाई, वेरेज जो आपका बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर लिटरेसी रेट कैसा होगा, वेरी लो होगा. और एग्जांपल्स का आप एक डिफरेंशिएशन बना सकते हैं. USA, UK, सिंगापुर आर द एग्जांपल ऑफ डेवलप कंट्रीज, वेरेज नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दीज आर द एग्जांपल ऑफ बैकवर्ड इकोनॉमी. सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What are the limitations of per capita income criteria for measuring development of the country? अभी तक हमने पॉजिटिव चीज़ें करी थी पर कैपिटा इनकम के बारे में, और कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि जो पर कैपिटा इनकम है ये गुड क्राइटेरिया है फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, बट इन एक्चुअलिटी ऐसा नहीं है. सो व्हाट आर द लिमिटेशंस, व्हाट आर द नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ द पर एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम? हियर दीज आर. फर्स्ट वन, per capita income shows only average income of the country.
Suppose if there are only two person in the country, one person is having 1 lakh of income and second person is having only 20,000 of income. Now in this case, what would be the average income? 1 lakh plus 20,000, 1 lakh 20,000 divided by 2, 60,000. तो on the basis of this average income we can say that country is developed, ठीक है. But in actuality the distribution of income is unequal. एक पर्सन तो ज़रूरत से ज़्यादा अमीर है और दूसरा पर्सन ज़रूरत से ज़्यादा गरीब है. तो ये जो एवरेज इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, इट ओनली गिव्स द आइडिया अबाउट एवरेज इनकम ऑफ द पर्सन. एक्चुअलिटी में पिक्चर कुछ और हो सकती है. नेक्स्ट, पर कैपिटा इनकम कंसीडर ओनली इकोनॉमिक आस्पेक्ट. इकोनॉमिक आस्पेक्ट वो होते हैं जो आप मनी की टर्म्स में कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है. तो वही सिर्फ एस्पेक्ट्स आप पर कैपिटा इनकम में इंक्लूड करते हैं विच यू कंसीडर इन टर्म्स ऑफ मनी. और इग्नोर किसको कर देगा? सोशल एस्पेक्ट्स को, क्योंकि सोशल एस्पेक्ट्स को आप मनी में कंसीडर नहीं कर सकते. कहीं ना कहीं यहाँ पर हम नॉन मेटेरियल थिंग्स की बात करते हैं. अब ऐसे कौन से सोशल एस्पेक्ट्स हैं जिसको पर कैपिटा इनकम इग्नोर कर देता है? जैसे आपका पर कैपिटा इनकम इग्नोर एजुकेशन को इग्नोर कर देता है, हेल्थ स्टेटस को इग्नोर कर देता है, सोशल फैसिलिटीज़ क्या कंट्री में अवेलेबल हैं उनको इग्नोर कर देता है. अल्टीमेटली हम लास्ट पॉइंट में इसको एलोबरेट करके लिख सकते हैं दैट पर कैपिटा इनकम आल्सो इग्नोर द नॉन मेटेरियल थिंग्स लाइक freedom, happiness, pollution free environment and social equality etc. So these are the negative points of average income और per capita method for measuring development of the country. अब माइंड में आती है एक बात कि अगर एवरेज ये जो पर कैपिटा इनकम है या एवरेज इनकम है एक अच्छा मेज़र नहीं है, तो आखिर वो कौन से क्राइटेरियाज हैं, वो कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जिसके बेस पर हम कंट्री की डेवलपमेंट को मेज़र कर सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दैट. बिसाइड पर कैपिटा इनकम what can be the other attributes or factor to compare economic development? These are the factors. First one is IMR. IMR क्या होता है? Infant mortality rate, ठीक है. एक साल में 1000 जिंदा बच्चों के ऊपर 1 साल की एज से कम कितने बच्चों की डेथ हो रही है, वो होता है आपका IMR. It indicates the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1000 alive children born in that year. ठीक है. तो अगर ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई है तो कंट्री कैसी होगी? बैकवर्ड होगी. इसका मतलब वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, तो कंट्री विल बी बैकवर्ड. नेक्स्ट है आपका लिटरेसी रेट. लिटरेसी रेट क्या होता है? आपको कैसे पता चलेगा कि लिटरेट किसको हम कहते हैं? द मेजर्स ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पीपल इन 7 years एंड अबव एज ग्रुप, ठीक है, हु आर एबल टू रीड राइट एंड अंडरस्टैंड इन एनी लैंग्वेज, ठीक है. तो अगर कोई पर्सन, हम लिटरेट किसको कहते हैं? हु कैन रीड राइट एंड अंडरस्टैंड इन एनी लैंग्वेज. तो अगर 7 years और अबव एज ग्रुप में जितने भी लोग लिटरेट हैं उससे हमें पता चलता है कि लिटरेसी रेट कैसी है. इफ़ लिटरेसी रेट इज़ हाई देन कंट्री विल बी कंसिडर्ड एज डेवलप्ड कंट्री. अगर लिटरेसी रेट आपका कम है तो कंट्री विल बी कंसिडर्ड एज बैकवर्ड कंट्री. नेक्स्ट है आपका नेट अटेंडेंस रेशो. नेट अटेंडेंस रेशो क्या है कि 6 to 10 ईयर के एज ग्रुप में कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है. इससे आपका लिटरेसी रेट भी रिलेट करता है. नाउ दिस इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप ऑफ 6 to 10 years अटेंडिंग स्कूल्स एज द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन दैट ग्रुप, ठीक है. 6 to 10 years में जो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है इन अ पर्टिकुलर कंट्री और उनमें से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो ये रेशियो बताता है. इफ़ दिस रेशियो इज़ हाई इट मीन्स कंट्री इज़ डेवलप्ड, और अगर नहीं है तो कंट्री इज़ बैकवर्ड. लास्ट क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट कैन बी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट. ऑन एन एवरेज एक पर्सन जब जीता है तो वो कितना एक्सपेक्ट करते हैं कि कितनी लाइफ जिएगा वो. तो इट डिनोट, क्या डिनोट करता है? इट डिनोट एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ. इससे हमें क्या पता चलता है? मेडिकल फैसिलिटीज़ जो उस कंट्री की हैं वेदर दीज आर डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड. अल्टीमेटली ये हमें एक इंडिकेशन दे देता है कंट्री भी कैसी है, डेवलप्ड है या बैकवर्ड है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हमें पता है कि अगर किसी कंट्री की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई है तो वो कंट्री बैकवर्ड होगा. तो हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे इसको कम कर सकते हैं? इम्प्रूव का मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई जो होना है वो नेगेटिव एस्पेक्ट है किसी कंट्री का, तो हमें इसे इम्प्रूव मतलब इसको कम कैसे कर सकते हैं? तो मेंशन एनी 2 measures टू कीप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लो. सबसे पहला, किसके कारण है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई? क्योंकि आपके यहाँ पर बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो आपकी अच्छी नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, यू विल मेक प्रोविज़न फॉर द बेसिक हेल्थ सर्विसेज. दूसरा,
प्रोविज़न ऑफ प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटीज़। अब बात करेंगे कि सर एजुकेशन का हेल्थ से क्या रिलेशन है। यहाँ पर हम एजुकेशन की जो बात कर रहे हैं, फॉर मेकिंग द पुअर पीपल एजुकेटेड रिगार्डिंग द फैसिलिटीज़ रिगार्डिंग द स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट रिलेटेड टू द हेल्थ सर्विसेज। रूरल एरिया में चले जाइए, गरीब लोगों के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, लेकिन उनको उनकी नॉलेज नहीं है, जिसकी एब्सेंस में वो उनका बेनिफिट नहीं उठा पाते। तो हमें उनको प्रॉपरली एजुकेट करना है उन स्कीम्स के बारे में। नेक्स्ट, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ पीडीएस। पीडीएस क्या है? Public distribution system. It is a system through which government distribute food grain to the poor people of the country with the help of ration shops. तो functioning तो हो रही है, but there should be proper functioning. What is happening in this PDS? Corruption is there, leakage is there, hoarding is there. तो ये सभी चीज़ें कम करना चाहिए हमें, so that our infant mortality rate can be reduced. Next आपका Why literacy is essential for the economic development of the country? No doubt education एक ऐसी चीज़ है जो आपकी पर्सनैलिटी के साथ साथ आपकी इनकम में इम्प्रूवमेंट लाती है। इनकम में इम्प्रूवमेंट आएगी तो आपकी कंट्री की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी और यू कैन बी सेव्ड फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन डन बाय मैनी अदर पीपल्स। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखकर इस क्वेश्चन को आंसर करना है। तो लिटरेसी, व्हाई इट इज़ एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फर्स्ट वन, illiterate people can be easily cheated or exploited by the traders, shopkeepers और employees। अब ये जो literate person है, normally these people work under these people, ठीक है। अब exploitation या cheated का मतलब क्या है? They get more work from these people but pay them less। तो अगर वो लिटरेट होगा तो उसे पता होगा कि क्या मिनिमम वेज रेट है, कितने काम के लिए कितना पैसा मिलना चाहिए, तो ही कैन इजीली बार्गेन, ठीक है। नेक्स्ट आपका, there is a shortage of skilled labor in the country, skilled worker in the country, and this shortage can be reduced with only through the literacy, ठीक है। आपकी हमारी जो कंट्री, यहाँ पर लेबर तो बहुत है लेकिन स्किल्ड लेबर की कमी है। तो दिस शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर कैन बी, स्किल्ड वर्कर्स कैन बी रिड्यूस विद द हेल्प ऑफ लिटरेसी ओनली। नेक्स्ट है आपका, मोस्ट ऑफ द इलिटरेट पीपल एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब पढ़े लिखे नहीं है तो कहाँ काम मिलेगा? ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो काम नहीं मिलेगा, तो दे हैव टू वर्क विद इन प्राइमरी सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और जिसके कारण उनकी इनकम क्या होती है? लो रह जाती है। सो दीज आर द फैक्टर्स because of which literacy is essential for the economic development of the country. Next है आपका, what are the public facilities needed for the development of the country? Explain any 4 public facilities. पब्लिक फैसिलिटीज़, यहाँ पर पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ क्या होती हैं? डेफिनेटली जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाए वो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं। तो आपकी क्यों ज़रूरी है किसी डेवलपमेंट के, किसी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, और किन्हीं 4 को हमें एक्सप्लेन करना है। सो पब्लिक फैसिलिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल, पब्लिक फैसिलिटीज़ प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एज दीज इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करते हैं? एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग। एंड वाई दीज आर एसेंशियल? बिकॉज दीज आर द बेस फॉर एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसीलिए आपका पब्लिक फैसिलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। कौन कौन, अब इनको हम एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट वन इज एजुकेशन। एजुकेशन सभी के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पब्लिक फैसिलिटी विच इज़ रिक्वायर्ड बाय ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री, वेदर ही इज़ रिच और एज वेल एज और पुअर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? आपका is another important facilities which play an important role in producing food security to the people of the country। क्यों? अगर कंट्री के लोगों को फूड सिक्योरिटी अवेलेबल है then he can be able to work in more efficient way। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। many transportation facilities like railway, airways, waterways etc become affordable when government is providing, when these are facilities are provided by the government। अगर ये जो ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए अफोर्ड करना पॉसिबल शायद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईलाइट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़। अब इन फैसिलिटीज़, पब्लिक फैसिलिटीज़ की हमें 3 एडवांटेज बताना है। फर्स्ट वन, पब्लिक फैसिलिटीज़ आर द चीपेस्ट वे टू प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज कलेक्टिवली। सभी को एक साथ ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का चीपेस्ट वे होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द पुअर पीपल सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ दीज पब्लिक फैसिलिटीज़। अगर हम कोरोना के टाइम की बात कर लें तो अगर ये राशन शॉप्स के थ्रू, पीडीएस के थ्रू अगर लोगों को फ्री में राशन नहीं दिया जाता तो मोस्ट ऑफ द पीपल वुड डाई ऑफ हंगर, ठीक है। तो ये आपका सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका
there are many services like police, education, transportation, etc. which are not affordable for an individual person. गवर्नमेंट जब इनको प्रोवाइड करवाती है तभी आप इनको अफोर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज इंडिविजुअल पर्सन इनको अफोर्ड नहीं कर सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट. ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है इस चैप्टर में. इट इज़ अ प्रोसेस एनलार्जिंग पीपल चॉइस एज वेल एज rising the level of well-being so that they can live a purposeful life और creative life. ठीक है, आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपका क्या बताता है, आपके लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज करता है, आपके चॉइसेस को एनलार्ज करता है, बिकॉज जब आपके पास ज़्यादा चॉइसेस होती हैं डेफिनेटली इट विल लीड टू द हायर लिविंग स्टैंडर्ड. और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं हम, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम. दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. बट इसके साथ साथ वो बातें जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वो सारी बातें भी इंक्लूड करते हैं, जैसे हेल्थ, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, फ्रीडम, सिक्योरिटी एटसेट्रा. तो यहाँ पर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अल्टीमेटली ह्यूमन की डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं. ऐसा इंडेक्स जो आपकी ह्यूमन की डेवलपमेंट को इंडिकेट करता है, और ह्यूमन की डेवलपमेंट को इंडिकेट कौन कौन से फैक्टर करते हैं, वही आपकी नेशनल इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम, आपका हेल्थ स्टेटस, आपकी एजुकेशन स्टेटस, आपका एनवायरनमेंट, आपकी फ्री नॉन मेटेरियल थिंग्स लाइक फ्रीडम, सिक्योरिटी एटसेट्रा. सो दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What is Human Development Index? Explain its significance. अब जो Human Development Index है that is prepared by World Bank. ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसको. It is an index that is prepared by World Bank under which all the nations of the world are indexed or ranked according to their performance in various parameters like per capita income, life expectancy, literacy rate, etc. ठीक है, तो ये प्रिपेयर कौन करता है, वर्ल्ड बैंक करता है ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिफरेंट पैरामीटर्स, और ये डिफरेंट कंट्रीज़ की रैंकिंग को प्रिपेयर करता है इन क्राइटेरिया के बेस पर. नाउ अदर पॉइंट्स इन द क्वेश्चन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज यूज टू मेजर द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. जब आप इस कंट्रीज़ को रैंक कर देंगे तो आप इजीली बता सकते हैं जो टॉप रैंकिंग में होंगी वो डेवलप कंट्रीज़ होंगी और जो बिलो रैंकिंग में होंगी वो बैकवर्ड कंट्रीज़ होंगी. ठीक है, इट इज़ पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी. प्रिपेयर कौन करता है, वर्ल्ड बैंक करता है. पब्लिश कौन करेगा, यूएनडीपी करेगा. यूएनडीपी स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू इट कंट्री हैज़ बीन रैंक्ड. और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं, it is a comprehensive approach which covers all the major aspects of the life apart from income. What else we can include, education, health status, life expectancy, etc. are considered for measuring development of the country. So this is all about the Human Development Index. Next question, Human Development Index is एंश्योर ऑफ सोशल डेवलपमेंट. अगर आपके ह्यूमन डेवलपमेंट हो रही है तो कहीं ना कहीं सोशल डेवलपमेंट भी हो रही है. इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पर आप करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट फोकस ऑन द पीपल. अल्टीमेटली किसकी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ह्यूमन की, मतलब पीपल की. इट इज़ कंसर्न विद द वेलबींग ऑफ द पीपल. जब हम लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, उनकी डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, तभी उनकी डेवलपमेंट होगी. इट इज़ द बिल्डिंग ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ to so that they can have healthy and creative life. ठीक है, अब इसमें हम करते क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट कब होगी, जब उनको इतने कैपेबल बना देंगे कि वो एक हेल्दी और क्रिएटिव लाइफ जी सकें. ठीक है, सो ह्यूमन डेवलपमेंट फोकस ऑन द एक्सपेंशन ऑफ द बेसिक चॉइसेस टू द पीपल. तो अल्टीमेटली जब सभी लोगों की डेवलपमेंट हो रही है तो इट लीड्स टू द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ इज BMI, बॉडी मास इंडेक्स, यूज टू डिटरमाइन अंडर नरिशमेंट ऑफ अ पर्सन. तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि BMI होता क्या है. वन वे टू डिटरमाइन वेदर द अडल्ट आर अंडर नरिश्ड और नॉट इज टू कैलकुलेट BMI. अगर हम ये देखना चाहते हैं कि कोई पर्सन अंडर नरिश्ड है या प्रॉपर नरिश्ड है, कैसा है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, BMI, बॉडी इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स. कैसे मेजर करते हैं इसको, बॉडी मास इंडेक्स को. In order to calculate BMI, first of all, weight of the person in kg is taken. आप person के weight को ले लेंगे kg में. Then height is measured in meters. The weight is divided by the square of the height. क्या करेंगे, पहले आप weight को measure करेंगे किसमें, kgs में. ठीक है, kgs में. उसके बाद height को measure करेंगे meters में, और meters के square से आप डिवाइड कर देंगे,
जो वेट है पर्सन का उसको डिवाइड कर देंगे हाइट ऑफ द पर्सन इन स्केयर्स इन द मीटर्स, उसका स्केयर से आप डिवाइड कर देंगे। एंड इफ दिस वैल्यू इज लेस देन 18.5 person will be considered as undernourished. If it is more than 25 then person will be considered as overweighted, और अगर इसके बीच की कहीं फिगर है then person will be considered as proper nourished। से यहाँ पर देखिए if the figure is less than 18.5 then the person would be considered as undernourished. However if the body mass index is more than 25 person is overweighted। तो इसका मतलब इसके बीच की जो फिगर्स हैं वो कंसीडर करेंगे हम प्रॉपरली नरिश्ड पर्सन के लिए। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज मेंट बाय ओवर यूजिंग अ रिसोर्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ओवर यूजिंग क्या होता है? नो डाउट व्हेन वी यूज द नेचुरल रिसोर्सेज more than the capacity of the nature to replenish it is known as over usage of resources। जिस रेट पर नेचर अपने नेचुरल रिसोर्स को रीजनरेट करती है, अगर उस स्पीड से ज़्यादा हम उसको यूज़ करें तो वो क्या हो जाएगा? ओवर यूज। मोर यूसेज ऑफ इट मीन्स मोर यूज ऑफ द रिसोर्सेज देन इट्स रीप्लेनिश्ड बाय द नेचर। लेट अस कंसिडर ग्राउंड लेवल वाटर। इसका एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल रिसोर्स और रिन्यूएबल रिसोर्स। दीज रिसोर्सेज आर रीप्लेनिश्ड बाय द नेचर, हावेवर इवन दीज रिसोर्सेज आर ओवर यूज। ठीक है, नो डाउट ये जो रिसोर्सेज है वाटर रिसोर्स की जो हम बात कर रहे हैं, इट इज़ रीप्लेनिश्ड बाय द नेचर, इट इज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, फिर भी आप इसको ओवर यूज़ करते हैं। In the case of ground level water, if we use more than what is being replenished by the rain, then it would be overuse of the resource। ठीक है, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। This is what Indian states have done। ठीक है, for example, farmers in Punjab have overused the ground level water and had led to the lowering the water level। पंजाब में आजकल वाटर क्राइसिस हो रहा है, तो ये ओवर यूसेज का ही कॉन्सिक्वेंस है, ओवर यूसेज का ही रिजल्ट है। नाउ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज। अगर आप अपने एरिया में पॉल्यूशन कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट जो है वो आपके एरिया तक लिमिटेड नहीं रहेगा, इट विल गो बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स और बाउंड्रीज ऑफ द नेशन। ठीक है, consequences of environmental degradation do not respect national or state boundaries। These issues no longer are regional or national issues, now they have become international issues। Our future is linked together। हम सभी का जो फ्यूचर है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल द मैनकाइंड एंड इज़ आर कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव द एनवायरनमेंट। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी क्या है? जब आप अपनी डेवलपमेंट को काफ़ी लंबे टाइम तक सस्टेन करके रखते हैं, ठीक है, और ये सभी के लिए ज़रूरी है, और अल्टीमेटली जब ये सभी के लिए ज़रूरी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सभी की बन जाती है कि सभी एनवायरनमेंट को सेव करें। दिस डे इट इज़ अ मैटर ऑफ डिस्कशन अमंग डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि सभी कंट्रीज़ को बैठना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए आपस में दैट हाउ वी कैन कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन। दीज आर नॉट टू बी कंट्रोल्ड बाय वन नेशंस बट ऑल द कंट्रीज नीड टू मेक एफर्ट्स इन दिस डायरेक्शन। तो इस तरह से आप अपने ओवर यूसेज को कम करके ये जो पॉल्यूशन है इसको कम कर सकते हैं। एंड क्योंकि हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि दीज डू नॉट रिस्पेक्ट और यू कैन से दीज गोज मूव बियॉन्ड द लोकल बाउंड्रीज। हम अगर पोल्यूशन कर रहे हैं अपने एरियाज़ में, आप ये समझ कर चलिए कि इट विल नॉट बी लिमिटेड टू योर ओन प्लेस, ऑन स्टेट और ऑन कंट्री, इट कैन गो बियॉन्ड दैट लेवल। लास्ट question of this chapter, explain term development, how it is linked with the sustainability। sustainability क्या होता है? when you use the concept या when you take the development from present generation to the future generation, आप किसी चीज़ को जब ज़्यादा लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं that is known as sustainability। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस विच हैज़ अ नोशन ऑफ गोइंग फर्दर अप, ऊपर जाने की प्रोसेस है। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, आप जब इम्प्रूव करें अपनी क्वालिटी लाइफ को तो इसका मतलब क्या है? यू आर हैविंग डेवलपमेंट। इट इज़ लिंक विद सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी से लिंक होती है सिंस इट हैज़ टू बी मेंटेन फॉर द फ्यूचर जनरेशन।
सपोज एज अ फादर अगर मेरे पास मेरी डेवलपमेंट होती है तो डेफिनेटली आई वांट टू हैव दिस डेवलपमेंट फॉर माय किड्स आल्सो। अगर मैं अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बाइक से कार पर लेके आता हूँ या अपर लेकर जाता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बेटा जो है वो उस डेवलपमेंट को मेंटेन करके रखे और उसको आगे जाए, ठीक है। बट ये कब पॉसिबल है, जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को हम नहीं करेंगे, ठीक है, जब हम अपनी इस क्वालिटी लाइफ को नेक्स्ट जनरेशन तक भी लेकर जाएंगे। इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन वी टेक केयर ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। क्यों, अगर मैंने आज की डेट में अपने नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर लिया, ज़्यादा यूज़ कर लिया, देन इट विल नॉट बी अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन। नेक्स्ट आपका रिसोर्सेज नीड टू बी यूज वाइजली सो दैट दे कैन बी रिप्लेनिश्ड। हमें रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करना है कि वो विद इन टाइम पीरियड रिप्लेनिश भी हो जाएं। ओवर यूसेज ऑफ रिसोर्सेज एग्जॉस्ट देम, नो डाउट अगर हम ओवर यूज़ करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब वो खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम। एंड if development is not sustainable it will give rise to environmental degradation and become global problem, ठीक है। तो ये ग्लोबल प्रॉब्लम को इन्विटेशन देगा और इट विल बी हार्मफुल फॉर एवरीवन, नॉट फॉर फ्यूचर प्रेजेंट जनरेशन, इट इज़ हार्मफुल फॉर फ्यूचर जनरेशन आल्सो। सो this is all about all this chapter number 1, that is development. I hope you like the video, and if you have liked the video please subscribe our channel, share the video with all your friends so that they can also get benefited from this video. Thank you very much for watching the video. Have a nice day to everyone. Thank you.